हाय हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज बात करते हैं कि वाई आई लेफ्ट द फेमस एमडी मेडिसिन एंड जॉइंड डीएनबी रेडियोलॉजी एज my post graduation course. So as you can see, it's a drastic change, so I'll give you some background. So first of all, my NEET PG rank was 1315 and my INI CT rank was 616. This rank was always aimed for getting MD medicine, since I've always wanted to pursue MD medicine as my uh, residency program and ahead. So what changed? So if since the first year of MBBS, I wanted to take medicine as my career choice. I was very fascinated by this subject and was always interested in subjects like pharmacology, pathology, as well as physiology, which ultimately all club together become medicine in the final year. And in the final year also, I was a very uh, fond reader of medicine books and medicine postings. I used to love to participate in discussions in the clinical postings. But something would have changed, na? So let's go to it. So this was my background. Now, what happened is, after securing this rank in NEET PG, I got a government college in Meerut, that is LLRM Medical College, which is in Meerut. I'm from Delhi, so it's close to my home. So I went for this one, and in first as well as the second round, I was allotted this college, and I joined this college after the results of second round were announced, and I was there till the results of third round were announced. So I would have worked around 2 weeks. Yes, I would have worked around 2 weeks over there. So what happened on those 2 weeks that made me reverse my decisions? So what happened is, the thing I realized was कि studying medicine and practicing medicine are two different things. I used to love studying medicine. It मुझे टाइम का नहीं पता चलता था जब मैं मेडिसिन का कुछ पढ़ रहा होता था, बट नॉट दैट केस विद सर्जरी इन ओबीजी दो. सो आई वाज प्रीटी क्लियर कि मेडिसिन वाज द वन आई वांटेड टू गो फॉर पीजी. तो बट प्रैक्टिसिंग फेल्ट लाइक कि जब पीजी ज्वाइन किया तो इट वाज लाइक कि अब तुमने जो पढ़ना था पढ़ लिया, यू हैव गॉट अ गुड lump of knowledge अब, and now it is just about applying it. Apply भी नहीं बोलूँगा, because apply में भी you have to use your brains. It was more of a brainless kind of job जब दिया, तो बड़ा ही aloof feel होता था from science, and it was just like we were doing scut work, like putting lines, cannulas and फोलीज आर्टीज, ये सब ही चल रहा था. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट इट वॉज मोर ऑफ, आई वुड से इन अ बिग वर्ड, इट वॉज जस्ट crowd management in a government college, I would say. There are so many patients, and that too LLRM में तो कम है. In other central institutes there will be even more patients, so it would just ultimately come up to crowd management rather than patient management, I would say. And वो चीज़ मुझे बहुत अंदर से परेशान करती थी कि because since I done my UG from a private medical college, so of course the number of patients would be less from this place, and things were more focused on to patient management over there. ऐसा नहीं है यहाँ manage नहीं होता था, but of course it was not as focused as that would be a private college or on Manipal. So वो चीज़ मेरे को बहुत तंग रही, because I've always seen people working in medicine in Manipal, and वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था, and I wanted to be in that position, but again यहाँ ऐसा नहीं लगा. So it was a big shock for me. But सिर्फ ये रीज़न नहीं था जिसने मुझे फोर्स किया इस चीज़ को चेंज करने के लिए. देयर आर अदर थिंग्स लाइक विच आई हैड नॉट एंटिसिपेटेड, या फिर पता होने के बावजूद आई डिड नॉट गिव इन अ वेटेज टू देम. एंड तो दैट वाज वर्किंग आवर्स. सो माय यूजुअल वर्किंग आवर्स वुड बी अराउंड 8 AM to 2 to 3 AM इन द नाइट, समटाइम्स इवन 4 AM. ठीक है, एटलीस्ट 2 AM तक तो रुकना पड़ता था, काम थोड़ा बच जाता था तो वी यूज टू स्टे बैक थोड़ा और एक्स्ट्रा, एंड देन अगेन 8 AM अगले दिन सुबह, एंड देर आर नो संडेज, नो वीकली ऑफ और नथिंग, जस्ट स्ट्रेट वे ऐसे ही करते रहने का है. ठीक है, सो एज यू कैन सी इट वुड हैव बीन वेरी टायरिंग. तो
मैंने कहा यार आई नो कि दिस इज़ जस्ट लास्टिंग फॉर 1 year बिकॉज फर्स्ट ईयर इज़ द टफेस्ट एंड इसके बाद कम हो जाता है, बट मेरे को इतना समझ आ गया था नहीं भाई मैं तो 1 साल भी ऐसा नहीं कर सकता अपने साथ, एंड ना ही आई कैन गो थ्रू दिस अगेन इन द नेक्स्ट रेजिडेंसी बिकॉज मेडिसिन में तो DMB करना पड़ता, अगेन आई वुड हैव बीन अ फर्स्ट ईयर सम टाइम अहेड, अभी फिर भी कर लेता तो बाद में तो पॉसिबल नहीं होता। तो ये एक काफ़ी मेजर फैक्टर मुझे और लगा कि भाई एक नया फैक्टर निकला जो मुझे पता भी नहीं था मेरे को इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द फेमस वर्ड लाइफस्टाइल। वो लोग बोलते थे कि मेडिसिन में लाइफस्टाइल नहीं होता, आई यूज्ड टू से कि ठीक है नहीं होता तो नहीं होता, काम करने में मज़ा आता होगा तो इट वोंट मैटर दैट मच, बट नहीं आई केम टू रियलाइज आफ्टर जॉइनिंग दिस प्लेस कि भाई नहीं थोड़ा तो लाइफस्टाइल भी मांगता है, बिकॉज यूजुअली व्हाट वी डू इज PG में इतना मेहनत करके आते हैं उसके आगे देन वी वांट कि थोड़ा तो वील उसका स्वाद मिले आई वुड से, बट वो नहीं होता। तुम you're thrown deep down into a pit and then it takes at least 1 year to come out of it, at least 1 year, and in subjects like medicine you will be going through that process again after 3 years। तो इतना तो समझ आ गया कि भाई lifestyle is very important for me उस समय। तो this was another major factor to rule out medicine। and तीसरी चीज़ आती है working conditions in a government college। See, I have been graduated from a private institute and that to Manipal, so the conditions over there were much more better than what would be in a government college, but government college में कुछ चीज़ें तो इतनी ख़राब लगी मुझे कि that made me sick। तो what happened is कि we were given common toilets in our hostel and that too all of those were Indian toilets which were rarely cleaned, so वो एक इशू मेरे को बहुत रहा। एंड दूसरा चीज़ हॉस्पिटल के अंदर भी जो टॉयलेट्स हैं इन एमरजेंसी और एनीवेयर दे आर नॉट यूजेबल, मतलब तुम उनको ऑन अ डेली बेसिस यूज़ नहीं कर सकते, एंड प्लस इफ़ यू आर वर्किंग 18 hour शिफ्ट इन अ हॉस्पिटल, मोर देन 18 आई वुड से, तो देन you would require a good washroom in the hospital, but it was not there। So and these are just the small things जो focus होती थी। cleanliness was good, I would say definitely for a government institute cleanliness was very good, but ये basic facilities like washrooms and living conditions were not that great, and मेरे लिए this was a big adjustment and I was not able to live up to it। तो दैट आई वुड से कि वॉशरूम्स में बहुत इशू रहा है उस कॉलेज में मेरे को, नो डाउट, एंड आई फेल्ट कि दिस वाज द मेजर रीज़न जिसकी वजह से आई डिसाइडेड कि भाई MD MS तो नहीं, आई वुड हैव टू गो फॉर DNB बिकॉज MD फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज अगेन बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव आफ्टर डूइंग UG फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज इटसेल्फ। तो एंड व्हेन यू हैव गॉट अ डिसेंट रैंक सो व्हाई पे दिस मच, जब DNB में यू विल गेट अ प्राइवेट हॉस्पिटल का एक environment and experience with very less fees, almost equal to any MD। so इसका DNB का fix तो fees तो capped होता है 1,25,000 पे, so per year, so it is I guess comparable to any government institute जो आजकल इंदौर वगैरह में इतना ही फीस होता है MD का भी। so yes, तो that made me decide कि नहीं मुझे गवर्नमेंट से नहीं करना है, I have to go for a private hospital, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो देन आता है तो वाई DNB, येस, तो दिस वॉज द रीज़न वाई DNB कि लिविंग कंडीशंस आर वेरी पुअर, वर्किंग आवर्स टोटली बैड एस, इतना तो नहीं हो सकता, एंड टू मच क्राउड मैनेजमेंट। तो ऑल दीज थिंग्स मेड मी डिसाइड DNB, और साथ साथ मेडिसिन पे डाउट कि मैं मेडिसिन कर पाऊँगा भी कि नहीं, एंड वेदर द प्रॉब्लम वॉज विद द प्लेस और विद मेडिसिन इटसेल्फ। सो वहीं पे आता है कि तो वाई नॉट DNB मेडिसिन, तो यही चीज़ का था मुझे, क्योंकि आई हैड स्टार्टेड हैविंग डाउट्स कि कहीं ऐसा ना लगे कि मेडिसिन में इशू है। तो व्हाट आई डिड वाज, मुझे गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली मिल सकता था विद दिस रैंक, सो आई आस्क्ड सम ऑफ द सीनियर्स ओवर देयर कि लेट मी शैडो देम फॉर 1 or 2 days एटलीस्ट, सो आई विल गेट टू नो कि क्या एनवायरनमेंट है बिफोर फिलिंग अप चॉइसेस अगेन। सो हाँ, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी हेल्पफुल, एंड उन लोगों ने बोला कि नहीं तुम आओ यार, डेफिनेटली सी द प्लेस, दे वर वेरी वेलकमिंग, एनवायरनमेंट वॉज too good to work, and living conditions, working conditions, I would say working conditions, washrooms and everything superb, wonderful place to work to, but again a big but came। I was interacting with patients over there, and OPD में भी बैठते थे, वार्ड्स में भी जाते थे, and I was still feeling not very comfortable, I would say। so धीरे धीरे लगने लगा कि the problem with me is also patient interaction। I was not, I won't say not liking it, but I was not very comfortable doing it on a daily basis for the rest of my life।
क्योंकि आजकल का टाइम इज़ चेंजिंग अ लॉट एंड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो चेंज सिंस द लास्ट 50 years जैसा होता था. बहुत इंटेरोगेटिव हो गया rather than just easy for इतना easy for us नहीं रहा, डॉक्टर्स ने easily had to guide patients through and इतना चिक चिक मुझको नहीं चाहिए था frankly, मुझे realize हुआ उस समय. So 2 new factors came into my thing. One is patient interactions and other is lifestyle, I would say. मणिपाल में मुझे पेशेंट इंट्रैक्शन का इतना आइडिया नहीं लगा बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट ओवर देयर, उधर भी अच्छा नहीं लगता था बट आई ऑलवेज ब्लेम कि वहाँ एक डिफरेंट लैंग्वेज है, सो मुझे शायद उतना हिस्ट्री टेकिंग एंड पेशेंट इंट्रैक्शन मज़ा नहीं आ रहा है. वंस आई विल डू इट इन हिंदी आई विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग एंड ज़्यादा अच्छे से हिस्ट्री भी ले पाऊँगा. बट यहाँ पे आके लगा कि वो डिसइंटरेस्ट अभी भी था एंड इट वॉज नॉट ऑन द कल्प्रिट वॉज नॉट द लैंग्वेज. सो ये एक नया फैक्टर अराइज हुआ. तो इन दोनों फैक्टर को नज़र में रखते हुए व्हाट आई डिस्कस विद माय एल्डर्स एंड एज वेल एज आई इवन कंसल्टेड अ साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि वहाँ पे ये 2 हफ्ता मेडिसिन करने का मेरा दिमाग सही में बहुत ख़राब हो गया था. बट हाँ, आई वुड से वन थिंग कि सीनियर्स वर वेरी हेल्पफुल देयर ऑल्सो. टॉक्सिसिटी वाइज देयर वॉज माइल्ड टू मिनिमल, आई वुड से माइल्ड टू, थोड़ा बहुत तो ज़रूरी होता है बट इट वॉज क्वाइट लेस फ्रॉम व्हाट आई हर्ड इन द न्यूज़ जितनी दूसरी जगहों पे होती है. सो सीनियर्स वर वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट द प्रोसेस ओवर देयर एंड उन्होंने सारा टाइम सपोर्ट किया. तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत टॉक्स मारा कहीं पे मुझको, तो बट स्टिल दीज 2 फैक्टर्स वर गिविंग मी क्वाइट बैड टाइम ओवर देयर. तो जब मैंने ये सब साइकियाट्रिस्ट से बात करी एंड देन इवन माई एल्डर्स है ना, सो वी ऑल केम टू अ कंक्लूजन कि ये क्लिनिकल ब्रांचेस में ये प्रॉब्लम तो रहेगी. यू वोंट गेट अ लाइफ स्टाइल, नाइदर यू वुड गेट विदाउट पेशेंट इंट्रैक्शन काम नहीं चलेगा. तो मैं तो इतना दुखी था कि मैं तो पैथो माइक्रो लेने को तैयार था क्योंकि वो दिल्ली में मिल जाता था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो मैं पैथो माइक्रो भी रेडी था बट नहीं, एवरीवन वाज सेइंग कि व्हेन यू गॉट अ डिसेंट रैंक यू शुड एक्सप्लोर रेडियो. एंड रेडियो मेरे लिए इट वाज ऑलवेज आई थॉट कि तो बड़ा स्टेल ब्रांच है, इसमें तो कुछ नहीं, पूरा दिन बैठे रहना है, कुछ करना नहीं है. But once I spoke to some of the people who were doing radio and some of my friends also who were about to join radiology, तो उन्होंने बोला कि भाई जो तेरी प्रॉब्लम है सुन के जो लगता है कि यू आर वेरी कीन इन स्टडिंग एंड यू वांट अ गुड लाइफ स्टाइल, यू वांट अ गुड पे एंड सम अमाउंट ऑफ पेशेंट इंटरेक्शन भी यू वॉन्ट किल यू. सो दैट इज़ ऑफर्ड बेस्ट इन रेडियो. एंड अगर तुझे पढ़ना पसंद है, इफ़ यू लाइक स्टडिंग मेडिसिन, तो देन ऑफ कोर्स यू विल लाइक स्टडिंग रेडियोलॉजी बिकॉज इट इज़ रेडियो मेडिसिन जस्ट विदाउट द ट्रीटमेंट पार्ट. उसकी जगह इमेजिंग डायग्नोसिस पे ज़्यादा थोड़ा डिटेल हो जाता है. सो व्हाई नॉट गो फॉर इट. तो मैंने कहा हाँ, बात में दम तो है. सो आई थोड़ा डग अ बिट डीप और लोगों से बात करी. आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कॉलेजेस वगैरह बिकॉज आई हैड डन नथिंग, कुछ नहीं आइडिया था एंड किसका क्या कॉलेज कैसा है. एंड देन आई हैड टू सर्च फॉर DNB कॉलेजेस, तो वो एक और नेक्स्ट लेवल स्टोरी होता है. बट हाँ, बात करते करते इतना मुझे रियलाइज़ होने लग गया था कि नहीं, रेडियो माइट बी गुड फॉर मी फॉर दीज रीजन्स कि इट विल डेफिनेटली ऑफर मी अ लाइफ स्टाइल आफ्टर 3. अगर रेजिडेंसी में नहीं भी किया, बिकॉज रेजिडेंसी इज टफ, रेजिडेंसी में नहीं किया तो 3 साल बाद तो श्योर शॉट देगा. और रेजिडेंसी भी बाकी सब्जेक्ट से लाइटर होगी, जैसे भी बोल के जितना भी काम करोगे लाइटर रहेगा. एंड फॉर देन यू विल बी वर्किंग इन अ वेरी गुड वर्किंग इन्वायरमेंट. जो तुम्हारा ये वॉशरूम वगैरह चेक करता है, यू विल हैव द बेस्ट ऑफ कंडीशंस. जो हॉस्पिटल में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट रेडियो का ही होता है, तो बेस्ट ऑफ कंडीशंस तुमको मिलेंगी, तुम AC में रहोगे एंड उसके बाद वर्किंग इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा. तो नेक्स्ट आता है पेशेंट इंटरेक्शन. पेशेंट इंटरेक्शन इसमें माइल्ड टू मिनिमल एकदम. स्कैन करने हैं, पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, दैट्स ऑल, उतना रहता है. एंड हिस्ट्री ऑल्सो भी ओनली टेक थोड़ा मिनिमल हिस्ट्री जितना ज़रूरत होता है. तो दिस वॉज सेटिस्फाइंग ऑल माई क्राइटेरियाज, दस आई वेंट फॉर इट. तो अल्टीमेटली माई फाइनल चॉइस केम आउट टू बी DNB सिंस इट हैड टू बी फ्रॉम अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड देन रेडियोलॉजी. सो उसका मैंने लिस्ट बनाया, देन विच आर दी बेस्ट हॉस्पिटल्स अवेलेबल विद इन माई रैंक. गंगाराम ऑफ कोर्स वॉज नॉट पॉसिबल, वो तो 400 पे ख़त्म हो जा रहा था. So I had to look outside Delhi and then I got Just Lok Hospital in Mumbai. So मैं रेट्रोस्पेक्ट में अगर इन टाइम को देखता हूँ, सो आई वुड से कि नहीं, आई मेड द राइट कॉल. आई एम वेरी हैप्पी इन रेडियोलॉजी एंड आई वुड नॉट हैव गॉन एनीवेयर एल्स. तो अच्छा है, तो आई वुड नॉट चूज़ एनीथिंग एल्स नाउ. इतना ज़्यादा अच्छा है एंड होपफुली एवरीवन कैन
गेट रेडियोलॉजी, इतना मतलब आई एम लाइकिंग द फील्ड. ठीक है. सो इन द एंड व्हाट can we all learn from my situation? See, ultimately, if you're seeing this video, you should all take home some message at least कि अगर ये बंदा इस situation में फंसा तो all other people are also quite vulnerable कि वो इस situation में आए. So how to avoid that in your time? So for that I would say कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तो लोग क्या होता है, अक्सर प्रिपरेशन करता है, इतना उसमें चले जाते हैं, इतनी मेहनत कर देते हैं, दी इवन स्टॉप समटाइम थिंकिंग कि भाई मुझे करना क्या है. एंड जब वो उसमें घुसते हैं तो रियलाइज ये तो भाई और बद से बदतर हो गई कंडीशन. सो आई थिंक यू शुड गिव सम डीप थिंकिंग, सम हैवी थिंकिंग कि तुमको क्या अच्छा लगता है. एंड नॉट जस्ट अच्छा लगता है इन द सेंस ऑफ रीडिंग, क्या सब्जेक्ट पढ़ने में तुम्हें अच्छा लगता है. तुम्हें एक चीज़ पढ़ने में अच्छी लगती है, तुम सब ढंग से पढ़ोगे, सब अच्छा लगेगा तुमको. बट तुम कौन सी लाइफ आगे परस्यू करना चाहते हो, दैट ऑल्सो इज़ क्वाइट अ क्राइटेरिया इसमें. सो आई वुड से कि टॉक टू PGs, टॉक टू पोस्ट ग्रेजुएट्स, work in the departments as a non-academic JR after completing your internship and after NEET exam. That might be very helpful तुमको environment बताने के लिए कि उस subject में कैसा चलता है आगे. and फिर उसके लिए I would say अगर if you are aiming for suppose medicine, so if you need medicine के अंदर तुम if you need a decent government college 500 के ऊपर rank में तुम्हें मिल जाता है. So aim for that rank and study for that. फालतू में अपने आप को ज़्यादा उसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है. बट मेक अ हैवी डिसीजन कि भाई मुझे यही करना है एंड आई एम गोइंग टू पुट ऑल माई एनर्जी फॉर दिस थिंग ओनली. और पक्का कर लो उस चीज़ को, क्योंकि और फिर पढ़ाई स्टार्ट करो अच्छे से. और अगर नहीं तो इंटर्नशिप के बाद जब तुम्हारा नीट का पेपर हो जाता है, एक बार फिर से किसी जिस जगह पे तुमने सोचा था थोड़ी देर काम करके देखो, इन केस यू वांट टू चेंज. एंड काम कैसे, नॉन अकेडमिक JR की तरह. आई वुड रिकमेंड दैट. ये आई नो नॉट लॉट ऑफ पीपल डू, वो लोग इन्जॉय करने लग जाते हैं. इन्जॉय ऑल्सो, बट आई वुड से 1 month भी तुम कहीं नॉन अकेडमिक JR की तरह काम करके देख लोगे, इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट. क्योंकि काउंसलिंग में तो इतना टाइम होता ही है. हमारी भी मार्च में एग्ज़ाम हुआ था एंड काउंसलिंग वेंट ऑन टिल अक्टूबर. तो आई वुड रिकमेंड दैट. ठीक है कि लर्न, मेरी सिचुएशन से यही हो सकता है कि थिंक हार्ड बिफोर choosing your subject. और एक चीज़ और इसमें ही ऐड करने के लिए कि इंस्टीट्यूट इज़ ऑलवेज लेस इम्पॉर्टेंट दैन सब्जेक्ट. नेवर रन बिहाइंड इंस्टीट्यूट्स कि नहीं भाई मुझे दिल्ली में ये मिल रहा है तो मैं वो ले लेता हूँ, मुझे PSM मिल रहा है दिल्ली में तो मैं PSM ले लूँगा, और बट आई लाइक ऑप्थेल्मोलॉजी. ऐसे नहीं चलेगा. मुझे भी दिल्ली में MAMC में ऑर्थो मिल रहा था, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि ऑफ कोर्स आई कैन नॉट डू ऑर्थोपेडिक, सर्जिकल फील्ड्स आर नॉट मेंट फॉर मी. तो ऑलवेज गो फॉर सब्जेक्ट्स जो तुम कर सको और जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, रादर देन इंस्टीट्यूट के पीछे भागना. ये भी एक कॉमन मिस्टेक होती है, कई लोग करते हैं. आई डिड नॉट डू दिस, बट हाँ कुछ लोग करते हैं, तो अगेन अ पॉइंट टू कंसिडर. सो ठीक है. सो well, that was my experience and why I made such a big change from a government seat in MD medicine to DNB radiology, and hope you can learn from my experience. And I'll see you next time then. Ciao, bye bye.